Hello students, as you all know, we have started with the revision of the development chapter from economics class 10th, and the first chapter we have already done it, but as per our discussions we decided that let's revise it once again. And for boards it remains to be one of the very important chapters. Certain conceptual things are there that you need to understand from the economics point of view, and we have a lot of data that is given here in this chapter. If you have to learn it, I have been reiterating it all the in all the classes, but now we will be discussing. Yesterday we stopped here. We are discussing about this box where the first topic and one of the very important topics of this chapter, we are discussing about the developmental goals. Developmental goals of different categories of persons, the people who are thinking about development, who plan for development, how they are fulfilling their goals, and what do they think. Okay? Three words we have discussed yesterday: the goals, aspirations, aims, objectives. लॉट ऑफ इंग्लिश में, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में भी समझने की कोशिश करो, दैट हाउ आर द गोल्स डिफरेंट फ्रॉम एस्पिरेशंस, हाउ इज एस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, हाउ इज ऑब्जेक्टिव डिफरेंट फ्रॉम एम. ऐसी सब वर्ड्स का लगभग मीनिंग एक ही है, ठीक है, बट लिटिल बिट ऑफ डिफरेंसेस दैट आर देयर. आई वुड recommend and suggest you to go through the dictionary also once so that the meanings are very clear to you. So here we are talking about a girl from, अभी हम देखेंगे इसमें a boy from a, कल तक हमने जो डिस्कस किया था अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, है ना, एक आदमी, एक लड़का, आई कैन से यंग बॉय 20, 21, 22 years old, 23 years old, जो कि who has already completed his education but has not got appointment, he has not got a job. So what would be his aim, what would be his goal? Yes children, you are understanding it very well, we have already discussed it. His goal and his aim would be just getting a job as per his qualifications. देखो यहाँ खाली जॉब मिलने वाली बात नहीं है, बात है कि आप कितने एजुकेटेड हो, आपका कितना टैलेंट है, उसके हिसाब से आपको जॉब मिलना चाहिए. That is important. Got it? Same way we are going to we will discuss about the boy from a rich urban family. अमीर परिवार का ये बच्चा है. शहरों में जो लोग रहते हैं उसमें ये the child who is there, the boy who is there, who is from a very rich family. What is his goal? Suppose the father is in a business, तो ही विल बी लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ हिज फादर. ही नोज़ इट वेरी वेल कि वो थोड़ा बहुत भी एजुकेटेड हो जाएगा, विथ लिटिल बिट ऑफ एजुकेशन ही कैन ईजली हैंडल द बिजनेस ऑफ हिज फादर. तो हिज मेन एम वुड बी कि इतना पढ़ाई हो जानी चाहिए, एंड इफ़ ही इज़ फ्रॉम अ रिच फैमिली तो द पेरेंट्स आर केपेबल एनफ टू सेंड हिम अब्रॉड. उसको फॉरेन कंट्री में आराम से भेज सकते हैं. And when in abroad the boy has gone taken education, तो आप समझ सकते हो कि he is quite capable of carrying on the family business. Got it? So a boy from a rich urban family getting proper education, looking after the family's requirements, and इसको चिंता, नौकरी की चिंता करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि if he is rich तो obviously the family business is proper and he will get a proper education. उतना पढ़ने लिखने के बाद रोटी दाल की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी. आई एम टॉकिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, आई एम एक्सप्लेनिंग इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. इन द सेम वे अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली. तो यहाँ पे देखो हाउ, व्हाट इज़ हर एम. शी इज़ अ गर्ल. पहले तो बॉय का हो गया, बॉय कैन गेट हिज एजुकेशन और कहीं भी जाके एजुकेट होके ही विल लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस. अभी गर्ल क्या करेगी, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर. अब सेम हो सकता है उसी फैमिली का ये जिक्र कर रहे हों जहाँ का ये केस दिया हुआ है
कि बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, फ्रॉम द सेम फैमिली द गर्ल ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेम फैमिली. तो पहले तो शी हैज़ टू अंडरस्टैंड what will be she doing in the life, and बाहर जाके वो अपनी पढ़ाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. शी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड लाइक हर ब्रदर, बिकॉज वॉट हैपन्स इज चिल्ड्रन, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है दैट इफ़ द फैमिली इज़ रिच, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन देखो फैसिलिटीज़ होना दूसरी बात है, सारी सुविधाएं मिलना दूसरी बात है, लेकिन माइंडसेट तो एक ही है, गर्ल बॉय वाला जो माइंडसेट है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हियर वी आर नॉट ओनली डीलिंग विथ इकोनॉमिक इशू, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बट आई सिंसियरली फील दैट दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू अ social issue. It is social, it is not economic. सोशल इशू है ये, कि उसको उतनी ही आज़ादी मिलेगी कि नहीं. गॉट इट. तो इसको आपको खाली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. नाउ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ यहाँ पे सोचना है, बट देन अगेन यू हैव अ सोशल इशू हियर कि आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली में ये आदिवासी जंगलों में रहने वाला ये बंदा है. दिस पर्सन हु इज़ लिविंग इन द फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे नर्मदा वैली इज़ देयर, ही इज़ लिविंग इन दैट वैली रीजन, एंड सडनली वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट स्टार्ट्स. डैम कंस्ट्रक्शन प्लीज रिलेटेड टू national development. On one hand we are talking of development, on other hand we are talking of displacement. Try to understand the meaning of these two words my dear children. ठीक है, एक कंट्री के लिए डैम अगर कंस्ट्रक्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इरिगेशन का वाटर वहाँ पे हो जाएगा, लेकिन उसके लिए यू नीड एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड, इतना सारा ज़मीन आपको चाहिए. तो ख़ास करके जंगलों में ये जो ज़मीन आपको द पीपल हु लिव, द गवर्नमेंट when they are constructing the dam, they'll be needing all that land for themselves नहीं, for construction of dam, अपने लिए नहीं. अब इस आदिवासी को वो कहेंगे भैया आपका तो खाली करो बेटे, you just move from here. So the Adivasi would be displaced from that place. So development goal is good for the country, but the goal is bad for the Adivasi. He wants a peaceful life. His ancestors have been living here. उनके कितने पूर्वज वहाँ रह रहे होंगे. So many centuries he might be staying here, but suddenly he has to leave that place. Now you can easily fill up this blank. किया है आप लोगों ने? जब आप ये कर लोगे, do all these persons have the same notion of development just now that we were discussing? So answer would be no, most likely not, because each one of them seeks different things. Got it? सबकी चाहते अलग हैं, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, लेकिन क्या सबकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो पा रही हैं? वो ऐसी चीज़ें चाहते हैं, दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, उनके खुद के लिए बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ they want to fulfill their aspirations or desires. बार बार ये वर्ड आ रहा है, गोल, एस्पिरेशन, है ना, एम, ऑब्जेक्टिव. यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, डिज़ायर. इज़ द डेवलपमेंट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ायर? इज़ देयर गोल फुलफिल्ड? So at times what happens, two persons or group of persons may seek things. seek, अभी एक और वर्ड आ गया, SEEK. aspirations, desires, seek the things which are conflicting just now. So on one hand side we are talking of development, the girl is expecting freedom like her brother. Look at her developmental goal, look
at her aspirations. Got it? लाइफ से उसको जो चाहिए, वो जो एस्पायर कर रही है, वो जो सोच रही है, क्या उसको वो मिल रहा है? एंड शी वॉन्ट्स अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर अब्रॉड जा रहा है, ब्रदर अब्रॉड जाके एजुकेशन लेगा एंड आके अपने फैमिली की बिजनेस संभालेगा। लेकिन क्या वो लड़की भी ऐसा ही चाहती है? अगर ऐसा चाहती है तो क्या उसकी विश फुलफिल हो पाएगी? सो ही ऑल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। उसको ये कहा जाएगा घर का काम संभालो, शादी करके बाहर जाओगी, कैसे सबके सामने, हाउ विल यू बिहेव एंड ऑल दैट। बट अभी सोच लो, मान लो सपोज शी वॉन्ट्स और शी एस्पायर्स टू बी अ बिजनेस वुमन, कि भाई अगर फैमिली का बिजनेस संभाल सकता है तो मैं भी तो संभाल सकती हूँ। शी कैन एस्पायर फॉर दैट, शी कैन थिंक फॉर दैट। लेकिन क्या उसको ऐसा करने की छूट मिलेगी? उसके भाई को हो सकता है पसंद नहीं आए। सिमिलरली, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है, नर्मदा वैली में, यहाँ पे नर्मदा रिवर पे डैम बन जाएगा तो। लेकिन ऑब्वियसली जब डैम में क्या होता है, जब आप बांध बनाते हो, देखो डैम को हिंदी में क्या कहा जाता है? बांध। पानी के फ्लो को क्या करते हो आप? बांध देते हो। यू कंस्ट्रक्ट अ डैम एंड यू स्टॉप द वाटर फ्रॉम फ्लोइंग। तो समवेयर पहली बात तो ये कि इट इज़ अ मैटर ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पहले तो आपने एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा सा खेल कर लिया। हाँ, जो नदी नेचुरल तरीके से बह रही है उसके ऊपर आपने डैम बनाया। डैम इसलिए बनाया कि पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन उस फ़ायदे के चक्कर में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होगा। मेनी पीपल विल बी फेसिंग लॉसेस ऑल्सो। ट्राइबल्स, जस्ट नाउ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट कि नर्मदा वैली में जो ट्राइबल रह रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम होगी। They might resent this and may prefer small check dams or tanks. वो चाहेंगे कि छोटे छोटे डैम्स बना दिए जाएं या इस तरह का टैंक बना दिया जाए कि फील्ड जो है वो इरिगेट हो पाए प्रॉपरली। तो अभी जब डेवलपमेंटल गोल्स की बात करते हैं, नाउ you have to understand, and whenever you talk about the developmental goals you have to mention about this example. Different persons can have different developmental goals. Just now we discussed about it, and वो बॉक्स में जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं चिल्ड्रन, आपको इसलिए वो एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, प्लस सम एक्टिविटी वाज आल्सो टू बी डन। कुछ some blank spaces were there that you have filled up so that you understand that how the requirements of the people would be fulfilled. जो एक के लिए डेवलपमेंट है, what may be development for one may not be development for the other. In fact it may be destructive. डेवलपमेंट तो आप नहीं कर रहे हो, प्लस दूसरे का नुकसान और कर दे रहे हो। सो नॉट ओनली डेवलपमेंट बट प्रॉब्लम। अभी ये जस्ट सी, लुक एट दिस पिक्चर। गाड़ी में आदमी है तो दिस लेडी हु इज सिटिंग विद द चाइल्ड अंडर द शेड, शी look at the kind of environment she is getting and look at the kind of environment that the child is getting. Does the child really deserve that kind of a behavior? Does the child does not need a healthy air? Does the child does not require facilities? तो अभी आदमी क्या कह रहा है? This person is saying those people don't, आप तो कार में बैठे हो। Look, he is saying that these people don't want to develop, but is the lady doing this thing or sitting under that shade on her own? क्या वो अपनी मर्जी से वहाँ बैठी है? क्या सच में वो डेवलप नहीं होना चाहती है? Got it? All these things we need to understand, and all these questions we need to read, we need to understand. Got it? That is there. So this was all about पहला हमने बात किया, first thing is development has a concept where different people have different goals.
एक तो अभी हम गोल्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट गोल एंड फर्स्ट एम इन विच इन डेवलपमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहला है कि लोगों के पास काम होना चाहिए. देयर मस्ट बी रेगुलर वर्क फॉर द पीपल हु वांट टू डेवलप, हु वांट टू अचीव समथिंग. ठीक है, बेटर वेजेस, पैसे उनको अच्छे मिलने चाहिए. एंड फार्मर्स हैं तो उनको डिसेंट प्राइस चाहिए फॉर देयर क्रॉप्स. जो भी वो खेती कर रहे हैं उसके लिए उनको सही दाम मिलना चाहिए. तो नॉट ओनली क्रॉप्स, मतलब वॉट एवर दे आर ग्रोइंग, सब्जी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, एनीथिंग दैट दे आर ग्रोइंग, दे विल बी ऑलवेज एस्पायरिंग एंड दे विल बी ऑलवेज थिंकिंग कि जो कुछ भी वो खेती कर रहे हैं, जो वॉट एवर बिजनेस दे आर डूइंग, दे मस्ट गेट प्रॉफिट इन दैट. And they want more income. So income बढ़नी चाहिए. That is a goal of, that is a universal goal. अब इसको मैं इस तरह से समझाऊंगी. I will explain it in this manner that money is a matter that needs to be taken care of, and that is a universal goal of each and every person staying और लिविंग इन दिस वर्ल्ड. इनकम के साथ साथ क्या चाहिए? आई गिव यू दिस क्वेश्चन, द टेस्ट दैट वी हैव टेकन, आई हैव टेकन द टेस्ट, इन दैट आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन कि इनकम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. मेनी पीपल आर देयर हु आर एस्पायरिंग नॉट ओनली फॉर मनी, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो दैट दे आर एस्पायरिंग फॉर. लाइक एक तो हो गया इक्वल ट्रीटमेंट. ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा सही बैठता है बिकॉज यू नो वी हैव द कास्ट सिस्टम. आई वॉन्ट से ओनली इंडिया, अमेरिका में भी है, अफ्रीका में भी है, वहाँ पे वी हैव द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड. ठीक है, इसका स्ट्रगल कितना, नेल्सन मंडेला ने कितना स्ट्रगल किया इन दोज कंट्रीज़. अमेरिका, अफ्रीका, वहाँ पे गोरे काले का भेदभाव है, तो हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है. तो one of the goals is there, ये all the low caste people, they always have this goal and they always aspire to become, to be treated equally. Believe me children, in the interior parts of Bihar and UP and Rajasthan, इन सब जगहों पे तो मतलब इतना है कि हाई कास्ट पीपल दे डोंट अलाउ द लो कास्ट पीपल, स्टिल आज तक ये है. बिलीव यू मी चिल्ड्रन, अगर आप गांव में आपके रूट्स हैं, आप गांव जाते होगे तो समटाइम्स यू माइट हैव सीन हाउ इनडिफरेंटली दीज पीपल आर ट्रीटेड. यस चिल्ड्रन, आई एम टॉकिंग अबाउट द लो कास्ट पीपल. इतना बुरा व्यवहार किया जाता है उनके साथ. तो इक्वल ट्रीटमेंट इज देयर, फ्रीडम इज देयर. फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? yes, freedom from atrocities of the high class caste कह लो, employers कह लो, the people who are paying you, जो भी पे करता है ना, वो चाहता है कि आप उनके ही शर्तों पे या उनके ही इशारों पे नाचो. simple language I am explaining children. Security in the job, many places, many jobs are there where the employers, what do, they keep वो डराते रहते हैं, वो धमकाते रहते हैं. द एम्प्लॉयर्स हमेशा कहते हैं ऐसा नहीं किया नौकरी से निकाल देंगे. तो आप जॉब कर रहे हो, यू आर डूइंग अ 10 to 5 जॉब. कितनी बार तो 10 to 5 नहीं हो जाता, इट इज़ 10 to 10 जॉब भी कर रहे हैं लोग, 12-12 घंटे भी काम करते हैं. उसके बाद भी समटाइम्स द बॉसेस से यू आर फायर्ड, यू विल बी थ्रोन आउट. तो सिक्योरिटी कहाँ हुई फिर? जॉब सिक्योरिटी नहीं है ना. एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों की रेस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है. चिल्ड्रन, पीपल रियली वांट टू वर्क विथ रेस्पेक्ट. द पीपल हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज और द पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑफिसेज, वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ देयर दैट दे लुक फॉर एंड दे एस्पायर फॉर. गोल्स में आप देखो ना, सो दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन. ये सारा गोल्स में आएगा. एक तो आप पहला तो आप दोगे कि इनकम है गोल, बिकॉज इट इज़ आस्क्ड. The question could be asked that if you are working in an industry, what would be your developmental goal?
तो आप सबसे पहले ये बताओगे कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट वुड बी इनकम एंड सेकंड वुड बी, फिर आप अपना हिसाब से देख लो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। रेस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट और सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या चीज़ आप पहली जगह पे रखना चाहोगे? यहाँ पे फॉर मी काम भी कर रहे हैं, पैसा मुफ्त का तो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो आई से सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी इज इम्पॉर्टेंट। बॉसेस आर तो ऑलवेज लाइक दैट, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दैट। गॉट इट? So what happens is money is important, income is important, क्योंकि खाली आपको मटेरियल गुड्स नहीं चाहिए, खाली आपको सामान नहीं चाहिए, आपके और बहुत सारी चीज़ें हैं। दैट इज़ योर रिक्वायरमेंट एंड यू ऑलवेज वांट दैट दी शुड बी फुलफिल्ड। इतनी मेहनत आप करते हैं। एनी पर्सन इज स्ट्रगलिंग फॉर इक्वल ट्रीटमेंट, for basic facilities. Every human being who is working is the goal is that material goods are, आपके पास घर होना चाहिए, गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब है, material goods that is there। लेकिन फिर शर्तों पे नहीं होना चाहिए, बेइज्जत करके नहीं होना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं लेकिन आप इज्जत की खोज में अभी भी इधर उधर भटक रहे हो, कि लोग सारी चीज़ें तो दे देते हैं लेकिन इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते। देन द गोल्स आर नॉट फुलफिल्ड चिल्ड्रन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मनी, मटेरियल थिंग्स, एक तो दे कैन बाय, पीपल कैन बाय मनी और मटेरियल थिंग्स। वही घर होना चाहिए, अच्छा सा फ्रिज टीवी, वीडियो, फ्रिज टीवी सोफ़ा, मटेरियल थिंग्स कुछ भी आदमी खरीद सकता है पैसे से, उस पर तो आवर लाइफ डिपेंड्स। ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इन सिंपल लैंग्वेज। लेकिन हमारी क्वालिटी, हमारी लाइफ और चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। दैट इज़ नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव, जिसको हम नापते नहीं हैं। कितना पैसा, बैंक बैलेंस 1 करोड़ रुपए बैंक में, लेकिन 1 करोड़ रुपए आपने कमाए लेकिन आपके पास इज्जत नाम की चीज़ नहीं है। बड़ी बेइज्जत हो के आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, क्या मतलब बनता है? क्या मतलब बनता है उस पैसे का? यू विल अर्न दैट मनी बट एक चीज़ होती है, सेटिस्फैक्शन नहीं है आपकी लाइफ में। आप बड़े दुखी हो, आपने पैसे तो कमा लिए लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो अभी नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द what I want to explain here is, and what the NCERT wants to explain, what the CBSE wants to make you understand, कि आप जब भी, because this every chapter and every topic has got some moral value also, तो moral value समझो कि पैसे चाहिए लेकिन इज्जत भी चाहिए। आप सिर्फ पैसे कमाने में सारा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप ये खोजोगे कि आपको इज्जत मिल रही है कि नहीं। सो इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, आप मतलब ऐसे नहीं समझ सकते हो, तो आप ऐसे सोचो कि फ्रेंड्स आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। वॉट इम्पोर्टेंस डज द फ्रेंड्स हैव? डू यू अटैच इम्पोर्टेंस टू योर फ्रेंड्स? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। गॉट इट? आप कितनी बार क्या होता है ना, मेनी थिंग्स आर देयर, मेनी एग्जाम्पल्स कुड बी शेयर्ड, कि फ्रेंड्स की हैप्पीनेस के लिए आप अगर उसके लिए कुछ भी कर सकते हो तो आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो आपके लिए भी कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप कि अरे यार कोई बात नहीं, पढ़ाई जो भी है जैसे भी है, पढ़ाई तो करनी है लेकिन दोस्ती छोड़ के पढ़ाई नहीं करनी है, दोस्त का साथ बना रहे, ये भी बहुत ज़रूरी है। सो देर आर मेनी थिंग्स जो कि हम पैसे में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन इट मीन्स अ लॉट टू आवर लाइफ्स। सो इनकम, अभी टॉपिक पे आ रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक। इनकम के चक्कर में कितनी बार क्या होता है, हम फ्रेंड्स को भूल जाते हैं, हम फैमिली को भूल जाते हैं। अ पर्सन हु हैज़ बिकम अ डॉक्टर and he is earning in
लैक्स, यहाँ पे जो लाखों कमा रहे हैं, जब दे माइग्रेट टू अमेरिका, दे माइग्रेट टू ब्रिटेन, लंदन चले जाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन फैमिली कहाँ है, फ्रेंड्स कहाँ हैं? आप पैसे कमा रहे हो, इतना पैसे हैं, बैंक बैलेंस है, बट वॉट अबाउट योर लाइफ्स सेटिस्फैक्शंस, इज इट देयर और नॉट? गॉट इट? तो यहाँ पे ये देखो, आप छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ डेमोन्स्ट्रेशन मीटिंग अगेंस्ट रेजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। डैम बन रहा है रिवर पे, एंड ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, द वर्कर्स, पीपल आर डेमोन्स्ट्रेटिंग हियर। नर्मदा घाटी करे पुकार, डूबे नहीं मान सम्मान, ऐसे देखो कुछ दिया हुआ है, मेरे को बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा है। नाउ दीज पीपल, अभी ये इस तरह की जो मीटिंग्स है, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, वाई दीज काइंड ऑफ मीटिंग्स आर बीइंग हेल्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मीटिंग हमको क्या बताना चाह रही है? दिस मीटिंग इज मेकिंग अस वेरी क्लियर दैट पीपल आर एस्पायरिंग फॉर डेवलपमेंट। डैम तो चाहते हैं, लेकिन डैम के साथ वो चाहते हैं कि उनकी शांति भी बनी रहे। दे शुड नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट प्लेस। ओके, देयर रेस्पेक्ट इज मेंटेन्ड, their belongingness towards towards the Narmada river, because river को आप जब डैम बनाते हैं, somewhere it is a big loss for the people who are living nearby। अक्सर पानी भर जाता है, गांव में घुस जाता है, अचानक से पानी जब छोड़ते हैं तो आसपास के जो गांव होते हैं सारे बाढ़ आ जाती है। तो फ़ायदा है तो बहुत नुकसान भी है। Are you understanding? So we have to take all these points into consideration. Example of Narmada river is given here. So it will be wrong to conclude, अभी यहाँ पे हम इसको, अगर हम इसको बस अभी रोकेंगे, that what cannot be measured is not important। जिस चीज़ की अभी दोस्ती को कैसे नापोगे? आपको इनकम आप नाप रहे हो कि हाँ यू आर अर्निंग इन करोर्स, यू आर अर्निंग इन लैक्स, हाउ विल यू मेजर फ्रेंडशिप, हाउ विल यू मेजर द फैमिली रिलेशंस? सो अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस एग्जाम्पल, फिर से देखो, एंड प्लीज मेंशन दीज एग्जाम्पल्स इन योर आंसर्स। इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, दूर कहीं आपको जॉब मिला है, आप सबसे पहले सोचोगे कि बहुत सारी, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच यू विल ट्राई टू कंसिडर। भाई अब्रॉड मिलेगा तो ऑब्वियसली यू विल बी अर्निंग इन डॉलर्स, यूरोज, गॉट इट, दिरहम, जो इधर दुबई एंड ऑल की जो सैलरी होती है, इट इज़ पेड इन दिरहम, उनकी करेंसी है ना, हमारे यहाँ जैसे रुपी है। तो अभी आप देखोगे कि आपकी फैमिली को भी वहाँ जगह मिल रही है कि नहीं, वर्किंग एटमॉस्फेयर इज़ गुड और नॉट, opportunity to learn, got it। लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्शन में देखो, some jobs are there, वहाँ पे आपको पैसे तो कम मिल रहे हैं, लेकिन regular employment is there that enhances your sense of security। द एम्प्लॉयर विल से कि आप प्लीज़ आइए हमारी कंपनी को ज्वाइन कीजिए, एंड हम आपको जितना दुबई में सैलरी मिल रही थी उतना तो नहीं दे पाएंगे, बट देन आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 3 इयर्स तक, आपको बिल्कुल भी जॉब से हटाया नहीं जाएगा। यू विल बी सिक्योर इन द जॉब यहाँ पे, और आपको जितनी भी फैसिलिटीज़ चाहिए वी आर रेडी टू गिव। तो दे ऑल्सो, क्या होता, दूसरा जॉब है, आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है, लेकिन जॉब सिक्योरिटी नहीं है, किसी भी दिन वो आपको बाहर निकाल सकते हैं, एंड दे विल आस्क यू टू वर्क कि मॉर्निंग 10 o'clock पे रिपोर्ट करना है, एंड रात में 8 बजे से पहले नहीं जाना है, आप कार्ड पंच होता है और बहुत अटेंडेंस लगती है एंड ऑल दैट। तो आपकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, अभी क्या हो गया, आपका फ्रीडम कब हो गया? पैसे दे रहे हैं लेकिन फ्रीडम कहाँ रहा?
आपसे 12 आवर्स काम करा रहे हैं, 10 आवर्स काम करा रहे हैं, वेयर इज़ द फ्रीडम, वेयर इज़ द हैप्पीनेस, वेयर इज़ द टाइम टू स्पेंड विद योर फैमिली? आप किसके लिए इतना कमा रहे हो? फैमिली के लिए कमा रहे हो। और आप जब घर से निकलते हो तो बच्चे सो रहे हैं, घर जाते हो तब बच्चे सो जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग? सो यहाँ पे कंक्लूजन देखो, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, फैमिली के लिए टाइम भी चाहिए। एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड, मिक्स ऑफ गोल्स। गॉट इट? आई होप इट इज़ क्लियर टू यू चिल्ड्रन। थोड़ा ऐसे धीरे धीरे करेंगे सो दैट एवरीथिंग इज अंडरस्टूड in word and its sense, and we will be continuing it in the next class. Thank you children.